فضائی آلودگی کے اعتبار سے لاہور دنیا میں ایک بار پھر دوسرے نمبر پر آ گیا۔ شہر کا مجموعی ایئر کوالٹی انڈیکس 209 ریکارڈ کیا گیا۔ کینٹ کے علاقے کا AQI 284 اور مال روڈ کا 226 ریکارڈ کیا گیا۔ کم سے کم درجہ حرارت 13 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 25 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ لاہور نیوز سامیہ سعید سے۔ سامیہ، آگاہ کیجیے موسم کے بارے میں۔ جی بالکل، گزشتہ 2 روز سے یہی دیکھنے میں نظر آ رہا تھا کہ شہر کا AQI جو ہے وہ ہمیں کم ہی دکھائی دے رہا تھا، اور لاہور دنیا میں آلودہ ترین شہروں میں 7ویں یا 11ویں نمبر پر براجمان ہوتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ لیکن اب ایک بار پھر یہی دیکھا جا رہا ہے کہ شہر میں آلودگی نے سر اٹھانا شروع کر دیا ہے، اور آج ایک بار پھر سے شہر لاہور دنیا میں آلودہ ترین شہروں میں دوسرے نمبر پر ریکارڈ کیا جا رہا ہے، اور شہر کا مجموعی ایئر کوالٹی انڈیکس 209 ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے اگر بات کر لی جائے شہر کے مختلف علاقوں کی، تو کینٹ کے علاقے کا ایئر کوالٹی انڈیکس 284 ریکارڈ کیا جا رہا ہے، جبکہ مال روڈ کے علاقے کا ایئر کوالٹی انڈیکس 226 ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ یہ دیکھا جا رہا ہے کہ 2 دنوں کے بعد آج ایک بار پھر سے آلودگی نے جو ہے وہ شہر لاہور میں سر اٹھانا شروع کر دیے ہیں۔ بارش کے باعث یہ دیکھنے میں نظر آ رہا تھا کہ فضائی آلودگی میں کمی نظر آ رہی تھی، لیکن ہم ہر بار جو ہے وہ بارش کا انتظار نہیں کر سکتے کہ جب بارش ہوگی تبھی فضائی آلودگی میں کمی ہوگی۔ فضائی آلودگی پھیلانے والے عناصر کو جب تک ہم کنٹرول نہیں کریں گے، فضائی آلودگی اسی طریقے سے ہی بڑھتی ہی جائے گی۔ اسی طریقے سے اگر بات کر لی جائے درجہ حرارت کے حوالے سے، تو آج کم سے کم جو درجہ حرارت ہے وہ 13 ڈگری سینٹی گریڈ، جبکہ زیادہ سے زیادہ جو درجہ حرارت ہے وہ 25 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اگلے 24 گھنٹوں تک موسم جو ہے وہ خشک ہی رہے گا، اور اگلے 24 گھنٹوں تک بارش برسنے کے جو ہیں وہ کوئی امکانات ظاہر نہیں کیے جا رہے، لیکن یہ دیکھا جا رہا ہے کہ دھند کا جو راج ہے وہ برقرار ہے، جس کے باعث موٹر ویز جو ہیں وہ بھی بند کر دی گئی ہیں۔ اگر میں بات کروں موٹر وے M4 کی، تو موٹر وے M4 کو گجرا سے عبدالحکیم تک بند کر دیا گیا ہے۔ موٹر وے سب سیکٹر M4 عبدالحکیم سے شیر شاہ ملتان تک مکمل طور پر بند کر دی گئی ہے، اور یہی دیکھا جا رہا ہے کہ موٹر وے پولیس کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جب تک حد نگاہ بہتر نہیں ہو جاتی، موٹر وے کو جو ہے وہ ٹریفک کے لیے بند ہی رکھا جائے گا۔ موٹر وے پولیس کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ شہری احتیاطی تدابیر اختیار کریں، اپنے سے آگے والی گاڑی کے درمیان جو ہے وہ مناسب فاصلہ رکھیں، تاکہ کسی بھی ناگوار صورتحال سے جو ہے وہ بچا جا سکے۔ فوگ لائٹس جو ہیں ان کا استعمال ضرور کریں، تاکہ جو ہے وہ حادثات سے بچا جا سکے۔ سامیہ، یہ بھی آگاہ کیجیے گا کہ جیسے ہم نے دیکھا کہ AQI میں کمی آئی ہے، تو لاک ڈاؤن میں نرمی کر دی گئی تھی حکومت کی جانب سے، کیا AQI دوبارہ بڑھنے کی وجہ سے مزید سمارٹ لاک ڈاؤن کا چانس ہے کوئی؟ کئی 2 دنوں سے یہ دیکھنے میں نظر آ رہا تھا کہ AQI جو ہے اس میں کمی کر دی گئی تھی، تو پنجاب حکومت کی جانب سے یہ اعلان کر دیا گیا تھا کہ سمارٹ لاک ڈاؤن اٹھانے کا فیصلہ کر دیا تھا، جس کے باعث یہی دیکھا جا رہا تھا ہفتے کو جو ہے وہ مارکیٹیں بند رکھنے کا پہلے اعلان کیا تھا، لیکن بارش کے باعث جیسی ایئر کوالٹی انڈیکس میں کمی آئی تو پھر سے یہ کہا گیا کہ ہفتے کو جو ہے وہ مارکیٹیں کھلی ہی رہیں گی، لیکن تعلیمی ادارے جو ہیں وہ بند رہیں گے، تاکہ اور یہ بتایا گیا تھا کہ ایئر کوالٹی انڈیکس میں کمی آئی ہے۔ لیکن آج کا پھر سے وہی بات، جب تک ہم لوگ ہمیشہ بارش کا انتظار نہیں کر سکتے، جب تک ہم لوگ جو عناصر ہیں جو آلودگی پھیلاتے ہیں، جس میں دھواں چھوڑنے والی گاڑیاں ہو گئی، فیکٹریوں سے نکلنے والا دھواں ہو گیا، جب تک ہم ان کو نہیں کنٹرول کریں گے تب تک فضائی آلودگی جو ہے وہ کنٹرول نہیں کی جا سکتی۔ اس حوالے سے تعلیمی اداروں میں جو ہے وہ آگاہی مہم بھی چلائی جا رہی ہے، ہاسپٹلس میں جو ہے وہ اسموک واک بھی کروائی جا رہی ہے، تاکہ جو ہے وہ اس کے حوالے سے آگاہی پھیلا سکیں اور لوگوں کو اس کے خطرناک جو اثرات ہیں اس کے بارے میں بتا سکیں۔ لیکن طبی ماہرین کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ بڑھتی ہوئی فضائی آلودگی کے باعث ناک، کان، گلا، سانس لینے میں طبی ماہرین کی جانب سے بھی بتایا جا رہا ہے کہ احتیاط برتیں شہری سموگ سے بچنے کے لیے۔ سامیہ سعید، بہت شکریہ آپ کا اس بارے میں تفصیل آگاہ کرنے کے لیے۔ میو ہسپتال لاہور میں آنکھوں کے کارنیا کا ایک اور کامیاب ٹرانسپلانٹ، مزید 5 نابینا افراد کی آنکھوں کو روشنی مل گئی۔ آئی سرجن پروفیسر اسد اسلم کا کہنا ہے کہ پاکستان میں 80,000 افراد بصارت سے محروم ہیں۔ قانون سازی نہ ہونے سے کارنیا بیرون ملک سے منگوانے میں مشکلات کا سامنا ہے۔ مزید اس رپورٹ میں۔
मियो अस्पताल में आंखों के कॉर्निया का कामयाब ट्रांसप्लांट, बसारत से महरूम 5 अफराद की आंखों को फिर से रोशनी मिल गई। आई सर्जन प्रोफेसर असद असलम और प्रोफेसर मोइन ने कॉर्निया का ट्रांसप्लांट किया। मरीजों का फॉलोअप चेकअप किया गया। प्रोफेसर असद असलम कहते हैं 5 मरीजों की बेनाई लौटाने के लिए कॉर्निया अमेरिका से मंगवाया गया। प्रोफेसर असद असलम ने बताया कि 300 नाबीना अफराद का कॉर्निया के मुंतजिर हैं। मुल्क में नाबीना अफराद की तादाद 80,000 है। कॉर्निया बैरून मुल्क से मंगवाने में मुश्किलात का सामना है। हमारे पास इस वक्त पाकिस्तान में अगर अंदाज़ा लगाया जाए तो तकरीबन 80,000 के करीब लोग हैं जो कॉर्नियल ब्लाइंडनेस में इस वक्त मौजूद हैं, और ये तादाद रोज़ ऐड होती रहती है। पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, ट्रामा भी बढ़ रहा है। डॉक्टर्स का कहना है कि श्रीलंका से मंगवाए गए कॉर्निया के नताइज बेहतर नहीं हैं, इसलिए अमेरिका से मंगवाए गए कॉर्निया बसारत की बहाली में इस्तेमाल किए जाते हैं। गैर कानूनी तारकीन वतन का इनखलास उस्तरवी का शिकार। गुज़िश्ता 10 रोज़ में पंजाब पुलिस सिर्फ 505 गैर कानूनी तारकीन वतन को वापस भिजवा सकी। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का ऑपरेशन सुस्त होने पर अफसरान से नाला है। गैर कानूनी तारकीन वतन का इनखलास उस्तरवी का शिकार। गुज़िश्ता 10 रोज़ के दौरान पंजाब पुलिस सिर्फ 505 गैर कानूनी तारकीन वतन को वापस भिजवा सकी। ज़राए के मुताबिक पंजाब में इस वक्त 40,000 के करीब गैर कानूनी तारकीन वतन मौजूद हैं। 40,000 गैर कानूनी तारकीन वतन के पास पाकिस्तान में रहने के लिए कोई कानूनी दस्तावेजात मौजूद नहीं। ज़राए का कहना है कि IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ऑपरेशन सुस्त होने पर ऑफिसर से नाला। CCPO लाहौर समेत पंजाब के तमाम ऑफिसर्स को ऑपरेशन तेज करने की हिदायत। पुलिस हुकाम के मुताबिक पंजाब में 80,000 के करीब तारकीन वतन मौजूद थे। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की ज़ेर सदारत गैर कानूनी तारकीन वतन के इनखला के अमल का जायजा लेने के लिए अहम इजलास। तमाम RPOs, CPOs, DPOs को बजरिया वीडियो लिंक इजलास में शिरकत। IG पंजाब की RPOs, DPOs को गैर मुल्की तारकीन के इनखला का अमल तेज करने की हिदायत। IG पंजाब ने कहा कि हुकूमती अहकामात के तहत तमाम गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की तारकीन वतन को जल्द अज जल्द वापस भिजवाया जाए। डॉक्टर उस्मान अनवर का मजीद कहना था कि तमाम रीजनल और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर्स इनखला के अमल के दौरान ज़िला इंतजामिया मुतल्लिका इदारों के साथ ताउन करें। आपको बताएं, शहरियों को दिया जाने वाला रिलीफ बनने लगा तकलीफ। शहर के यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा और मुख्तलिफ दालें किल्लत का शिकार। कभी चीनी, कभी घी, और अब आटा शहरियों के लिए हासिल करना मुश्किल हो गया। शहरी कहते हैं अशिया खुरोनोश की खरीदारी करना मुश्किल हो गया है। अब्दुल कादिर की रिपोर्ट। शहर के सस्ते यूटिलिटी स्टोर्स शहरियों को महंगे पड़ने लगे। कभी चीनी तो कभी घी की सप्लाई मुतासिर। मुतअद्दिद यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ता आटा और मुख्तलिफ दालों की किल्लत बढ़ने लगी। दाल चना, दाल मसूर और काले चने सप्लाई न होने से स्टोर से गायब। शहरी घर के राशन के लिए बार बार चक्कर लगाने पर मजबूर। यूटिलिटी स्टोर पर आए खरीदारों का कहना है कि कभी घी चीनी नहीं मिलती तो कभी आटा मौजूद नहीं होता। शहर के परचून बाजारों में आटे के दाम बढ़ने से यूटिलिटी स्टोर पर सब्सिडाइज आटे की किल्लत गरीब के लिए मजीद अजियत का बाइस बनने लगी। कैमरामैन बिलाल अहमद के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। पंजाब हुकूमत ने सूबे में सरकारी गंदम की इजराई कीमत 4700 रुपये फी मन मुकर्रर कर दी। गंदम निर्ख की बुनियाद पर लिबरल पॉलिसी के तहत कोटा फराहमी और 10 किलो आटा थैला की कीमतें मुकर्रर कर दी गईं। पीर के रोज़ से फ्लोर मिलर्स को गंदम फराहमी का आगाज़ किया जाएगा। महकमा खुराक पंजाब ने 10 किलो आटा थैला की सरकारी कीमत 1399 रुपये मुकर्रर कर दी। 20 किलो आटा थैला 2798 रुपये में मिलेगा। ओपन मार्केट में आटे की फ़ी किलो कीमत 140 रुपये किलो मुकर्रर। साल 2022 में आटे की फ़ी किलो कीमत 64 रुपये थी। सेक्रेटरी फूड पंजाब अनवर खुर्शीद का कहना है कि लिबरल पॉलिसी के तहत गंदम कोटा रिलीज़ किया जाएगा। लेस्को का बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन जारी। 24 घंटों के दौरान 247 बिजली चोर पकड़े गए। तर्जुमान लेस्को के मुताबिक पकड़े जाने वाले कनेक्शंस में 7 कमर्शियल, 2 ज़राई और 338 डोमेस्टिक थे। मज़ीद इस रिपोर्ट में। लेस्को बिजली चोरों के खिलाफ इन एक्शन। 24 घंटों के दौरान 247 बिजली चोर पकड़े गए। 242 के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुए। तर्जुमान लेस्को के मुताबिक पकड़े जाने वाले कनेक्शंस में 7 कमर्शियल, 2 ज़रई और 238 डोमेस्टिक थे। तमाम कनेक्शन मुनक़ता करके 4,10,236 यूनिट डिटेक्शन बिल की मद में चार्ज किए गए। 24 घंटों के दौरान चार्ज यूनिट्स की मालियत 2,22,45,308 रुपए है। सिविल लाइंस के इलाके में कनेक्शन को 70 लाख रुपए जुर्माना किया गया। फिरोजवाला और मनावा में 5-5 लाख रुपए, चूनिया में कनेक्शन को 2 लाख रुपए की रकम चार्ज की गई। तर्जुमान लेस्को के मुताबिक 64 रोज में जारी ऑपरेशन के दौरान 24,965 मुलजमान बिजली चोरी में मुलविस पाए गए। मुहिम के दौरान अब तक 12,334 मुलजमान को गिरफ्तार किया गया। 24,712 कनेक्शन के खिलाफ FIR की दरखास्तें जमा करवाई गयी। तर्जुमान लेस्को का मजीद कहना है कि बिजली चोरों को अब तक 4,69,69,557 यूनिट चार्ज किए गए। चार्ज
यूनिट्स की मालियत 1,97,89,75,227 रुपए है। हुकूमत ने गैस के निर्ख 172% जबकि बिजली 40 पैसे फी यूनिट महंगी करने के नोटिफिकेशन जारी कर दिए। सार्फिन को 1 नवंबर से ही बिल अदा करने होंगे। देखते हैं ये रिपोर्ट। IMF कर्ज की किस्त मिलने की राह में हायल एक और रुकावट दूर। गैस का जोरदार धमाका, बिजली का भी झटका। गैस 172% महंगी, बिजली बिल भी 40 पैसे फी यूनिट बढ़ गया। ओगरा नोटिफिकेशन के मुताबिक माहाना 100 से 300 मुकाब मीटर गैस के इस्तेमाल पर बिल में 600 रुपए से 1900 रुपए का इजाफा होगा। बल्क कंज्यूमर के लिए गैस की कीमत 2000 रुपए, कमर्शियल सार्फिन के लिए 3900 रुपए, सीमेंट इंडस्ट्री के लिए 4400 रुपए और CNG सार्फिन के लिए गैस की कीमत 3600 रुपए फी MMBTU मुकर्रर की गई है। दूसरी जानिब नेपरा ने सितंबर के लिए फ्यूल कास्ट एडजस्टमेंट की मद में बिजली 40 पैसे फी यूनिट महंगी करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सार्फिन से इजाफी वसूलियां नवंबर के बिल्स में की जाएंगी। ताहम इजाफे का इतलाक लाइफ लाइन और के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। यहाँ पर आपको बताएं, लंडा बाजार बोहड़वाला चौक पर तजावुजात की भरमार। बोहड़वाला चौक पर खरीदारों का रश लग गया। रोड पर गर्म मलबूसात के स्टॉल्स लग जाने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। तजावुजात के बाइस 3 लेन रोड की सिर्फ 1 लेन खुली है। शाहजेब शहजाद की रिपोर्ट। शहर में तजावुजात के मसाइल हल नहीं हो सके। सर्दी आते साथ ही बोहड़वाला चौक पर भी तजावुजात की भरमार। गर्म मलबूसात के स्टॉल्स ने तजावुजात की शक्ल में सड़क को लपेट में ले लिया। 3 लेन रोड तजावुजात के बाइस सिर्फ 1 लेन ही खुली है। शहरी कहते हैं तजावुजात के बाइस सड़क पर हादसा रोनमा होते हैं और ट्रैफिक के बहाव में भी खलल पड़ता है। शहरियों ने यह भी बताया कि लंडे के कपड़े भी कुव्वत खरीद से बाहर होते जा रहे हैं। पिछले साल की निस्बत इस साल कपड़ों का रेट 3 गुना हो चुका। इसको थोड़ा सा ये रेडियन जो है ना आगे पीछे करवा के रास्ता मुकम्मल करवाना चाहिए। पार्किंग देख लें, पार्किंग ये निज़ाम देख लें, ये सारा निज़ाम, कोई एम्बुलेंस गुजर नहीं हो बहुत मुश्किल हो जाता है। काफ़ी फ़र्क आया है। पहले एक चीज़ 50 रुपये 100 रुपये में मिल जाती थी सेकंड हैंड जो थी, अभी 400-500 रुपये मांग रहे हैं। ट्रैफिक बहाल करवाने और शहरियों को मसाइल से निकालने के लिए मुतल्लिका महकमों को तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन करना होगा। कैमरामैन बाबर के साथ शाहजेब शहजाद, लाहौर न्यूज़। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने जारी मंसूबों को मुकर्ररा वक्त में मुकम्मल करने के लिए मुतालिका सेक्रेटरीज को हिदायत जारी कर दी। कहते हैं मंसूबों की बरवक्त तकमील से ही शहरियों को रिलीफ मिलेगा। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेरे सदारत प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड में अहम इजलास फलाह आमा के जारी 43 तरजीही मनसूबों पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। वज़ीर आला ने ड्रोन फुटेज के जरिए 43 मनसूबों पर होने वाली पेशरफ्त का मुशाहिदा किया। चेयरमैन बोर्ड इफ्तिखार सहू ने ब्रीफ किया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने जारी मनसूबों को मुकर्ररा वक्त में मुकम्मल करने के लिए मुतालिका सेक्रेटरीज को हिदायत दी। इजलास में शाहदरा मल्टी ग्रेड फ्लाई ओवर, इमामिया कॉलोनी ओवर हेड ब्रिज, अकबर चौक फ्लाई ओवर, रिंग रोड सदरन लूप पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। गुजरांवाला को सियालकोट लाहौर मोटरवे से लिंक करने के लिए वांडू इंटरचेंज से बेनजीर चौक तक 2 रोया सड़क की तामीर। फैसलाबाद में अब्दुल्लापुर फ्लाईओवर, गज्जू मत्ता ताकसूर, फिरोजपुर रोड प्रोजेक्ट पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला का मुल्तान शुजाबाद फ्लाईओवर मंसूबे पर काम की रफ्तार में सुस्त रवि पर तशवीश का इजहार। नए GOR सर्विसेज गंगाराम, लेडी वेलिंगडन, म्यो और जनरल समेत दीगर अस्पतालों की अपग्रेडेशन वर्क पर पेशरफ्त का जायजा भी लिया गया। लाहौर चिड़ियाघर और सिफारी पार्क की अपग्रेडेशन, फैसलाबाद, रावलपिंडी और गुजरांवाला सेफ सिटी अथॉरिटी प्रोजेक्ट के बारे में भी ब्रीफिंग ली। कैडेट कॉलेज मुल्तान, गुजरांवाला यूनिवर्सिटी के क़याम और मुल्तान के कला कोना कासिम बाग की बहाली और पार्क के क़याम का जायजा भी लिया गया। शुरा को PAFD लेबोरेटरी और बायोगैस प्लांट्स के बारे में भी ब्रीफ किया गया। इजलास में DG पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी डॉक्टर मोहम्मद अशरफ ताहिर मरहूम के असाले सवाब के लिए फातिहा खानी भी की गई और उनकी खिदमात को खराज अकीदत पेश किया गया। सियासी मंजरनामे से खबर शामिल करें और आपको बताएं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का कहना है 21 अक्टूबर के तारीखी जज्बे से इलेक्शन में जाएंगे। मुस्लिम लीग नून इंतखाबात में जितनी ज़्यादा नशिस्तें जीतेगी उतनी तेज़ी से महंगाई में कमी लाना मुमकिन होगा। अवाम मुल्क में अमन व तरक्की और महंगाई में कमी वाला वही दौर चाहते हैं जो नवाज शरीफ छोड़ कर गए। इस हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। साबिक वजीर आजम और सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ से मॉडल टाउन लाहौर में पार्टी रहनुमाओं सायरा अफजल तारड़, इरफान खान डाहा, मोहम्मद खान डाहा, नासिर बोसाल, डॉक्टर निसार चीमा, मलिक इकबाल चन्नड़, जहीर इकबाल चन्नड़, राना रऊफ, राना आतिफ रऊफ और साकिब खुर्शीद ने मुलाकात की। इंतखाबी सरगर्मियों के हवाले से शहबाज शरीफ ने पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों के जज्बे को सराहा। सदर नून लीग का कहना था कि 21 अक्टूबर के तारीखी जज्बे से इलेक्शन में जाना है। जितनी ज्यादा नशिस्तें जीतेंगे उतनी तेजी से महंगाई में कमी लाना मुमकिन होगा। मॉडल टाउन
टाउन में शहबाज शरीफ से 5 साबिक अरकान असम्बली ने भी मुलाकात की। मनसब डोगर फारूक रजा मानिका, आसिफ अब्बास, मियां माजिद नवाज और जंग से गद्दी नशीन निजामुद्दीन सियालवी ने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान किया। मुलाकात में मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह, शेख फयाजुद्दीन, अताउल्लाह तारड़, राना अरदात हुसैन और अहमद रजा मानिका भी मौजूद थे। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं, इंतखाबात की तैयारियां शुरू कर चुके हैं। महंगाई, दहशतगर्दी और लोड शेडिंग से बड़ा कोई चैलेंज नहीं। खुशहाली के सफ़र को रोककर एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया। हम मुल्क और आवाम को एक बार फिर बहरानों से निकालेंगे। हसन रजा की रिपोर्ट। मॉडल टाउन लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह ने कहा कि पाकिस्तान तरक्की की जानिब गामजन था। फितने की नाकामी मुल्क को बहुत महंगी पड़ी। हमने 4 साल में दहशतगर्दी और लोड शेडिंग का खात्मा करके दिखाया। इंतखाबात में कामयाब होकर वफाक और पंजाब में हुकूमत बनाएंगे। हमारी सियासी सरगर्मियाँ भरपूर तरीके से जारी हैं। दुनिया कहती नहीं थी कि जी ये कैसे मुमकिन है कि दहशतगर्दी इस मुल्क से ख़त्म हो जाए। दहशतगर्द तो आ गए हैं सबात में, वो तो बस अगला कदम उनका इस्लामाबाद में है, ये कैसे ख़त्म होगी। लोग कहते नहीं थे कि जनाब 20-20 घंटे की लोड शेडिंग है। बिजली के कारखाने या जो डैम है ये तो बनते हैं 15-15 साल में, 12-12 साल में, ये कैसे ख़त्म होगा जी। हमने करके दिखाया। साबिक वजीर दाखिला ने कहा कि हमारे रहनुमाओं को जेलों में डाला गया, इसके बावजूद हम खड़े रहे। 2018 के इलेक्शन में मुश्किलात के बावजूद हमने कामयाबी हासिल की। हम मुल्क और अवाम को एक बार फिर बहरानों से निकालेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग एक पॉलिटिकल जमात है। हमने तो हमेशा नामसाइद और मुश्किल हालात में जो है वो फाइट किया है, सियासत की है। उसके बावजूद हम अपने पूरे कद से खड़े रहे। 2018 का इलेक्शन जो है उस वक्त कौन सी सहूलतकारी थी, तो क्या हमने सूबाई असम्बली की 130 सीटें नहीं जीती? सबसे बड़ी पार्टी हम नहीं थे? क्या कौमी असम्बली में सबसे बड़ी पार्टी पंजाब में हम नहीं थे? प्रेस कॉन्फ्रेंस में सईद अहमद समेत मुतअद्दिद रहनुमाओं ने नून लीग में शामिल होने का ऐलान किया। दूसरी तरफ साबिक विफाकी वजीर सैयद खुर्शीद शाह ने कहा है कि नून लीग निगरान हुकूमत में शामिल है। लेवल प्लेइंग फील्ड कैसे हो सकती है? पीपल्स पार्टी किसी से इत्तेहाद नहीं करेगी। इलेक्शन पंक्चर किए गए तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद यासीन। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह की लाहौर आमद। पार्टी रहनुमा नवीद चौधरी और सोनिया खान के घर गए। खुर्शीद शाह ने नवीद चौधरी से उनकी अहलिया जबकि सोनिया खान से उनकी वालदा की वफात पर ताज़ियत की। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सैयद खुर्शीद शाह का कहना था कि पीपल्स पार्टी पंजाब में सरप्राइज दे सकती है। पीपल्स पार्टी के खिलाफ जो इत्तेहाद बन रहे हैं इसके पीछे कोई ताकत नहीं, ये खुद ही बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि सिलेक्शन इस मुल्क के लिए मौत है। इलेक्शन पंक्चर किए गए तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। फेयर एंड फ्री इलेक्शन में लोग आए, अपना व्यूज़ दें, प्राइम मिनिस्टर पे कोई ऑब्जेक्शन न हो, पंचर इस मुल्क में रात को न लगे और सिस्टम न बैठ जाए, तो मैं समझता हूँ तो हमारी इकानमी बेहतर हो सकती है। अगर ये सिलेक्शन की इन लोगों ने फिर गलती की तो फिर पाकिस्तान के लिए मुझे अफसोस करना पड़ता है कि जिस तरीके से आज हमारी पोजीशन है, हम फ़लस्तीन के मसले पे भी नहीं बोल सकते, ऐसे ही अपने मसले पे भी नहीं बोल सकते। नवाज शरीफ के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में खुर्शीद शाह ने कहा कि 4 दिन जेल जाने से सियासतदानों का कद बढ़ जाता है, लेकिन ऐसा न करके नवाज शरीफ का कद छोटा हुआ है। हम नवाज शरीफ की तरह रेड कारपेट नहीं, सिर्फ शफाफ इलेक्शन चाहते हैं। अगर मियाँ पहले भी कभी नहीं हुआ था कि हाई कोर्ट का रजिस्ट्रार जो है वो एयरपोर्ट पे जाए और फिर जाके थंब ले ले और फिर जाके जाए, तो ये जो मियाँ साहब कर रहे हैं, मुझे मियाँ साहब के लिए बड़ी इज़्ज़त और एहतराम है और ख्वाहिश भी है कि वो सियासतदान नज़र आए। तो इस तरीके से वो छोटा सा बन जाता है, छोटा, बिल्कुल छोटा। खुर्शीद शाह ने कहा कि आसिफ जरदारी खामोश नहीं, डट कर बोल रहे हैं। कैमरामैन फैसल के साथ मोहम्मद यासीन, लाहौर न्यूज़। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने मंशूर कमेटी के अरकान का ऐलान कर दिया। कमेटी के अरकान की तादाद 33 है। मंशूर कमेटी में 4 सूबों आज़ाद जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और अक़लियतों को नुमाइंदगी दी गई है। नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। रिपोर्ट कर रहे हैं हसन रजा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने मंशूर कमेटी के 33 अरकान का ऐलान कर दिया। पार्टी सदर शहबाज शरीफ की मंजूरी से सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल ने मंशूर कमेटी की तश्कील का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी किया। मंशूर कमेटी में 4 सूबों आज़ाद जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और अक़लियतों को नुमाइंदगी दी गई है। मंशूर कमेटी के चेयरमैन सेनेटर इरफान सिद्दीकी को बनाया गया है। एहसन इकबाल, परवेज रशीद, साद रफीक, आज़म नज़ीर तारड़, खुरम दस्तगीर कमेटी के रुकन मुकर्रर। मरियम औरंगज़ेब, राना एहसान अफसल, मुसद्दक मलिक, बैरिस्टर ज़फरुल्लाह कमेटी अरकान में शामिल। पीर साबिर
شاہ، اختیار ولی، کھیلداس کوستانی، بشیر میمن بھی منشور کمیٹی کا حصہ ہیں۔ راہیلہ دورانی، عظمی بخاری، ناصر محمود، کامران مائیکل، رانا مشہود خان بھی کمیٹی کے رکن ہیں۔ بشیر میمن کو مسلم نون صوبہ سندھ کا صدر جبکہ شاہ محمد شاہ کو نائب صدر مقرر کیا گیا ہے۔ حسن رضا، لاہور نیوز۔ لاہور ہائی کورٹ نے 13 نومبر کے مقدمات کی کاز لسٹ جاری کر دی، جس کے مطابق پرویز الہی کو بحفاظت گھر نہ پہنچانے پر پولیس افسران کے خلاف توہین عدالت کی درخواست، چینی کی قیمتیں مقرر کرنے کا اختیار کین کمشنر کو دینے کے خلاف درخواستیں سماعت کے لیے مقرر کی گئی ہیں۔ مزید کون سے کیسز شامل ہیں، جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پرویز الہی کو بحفاظت گھر نہ پہنچانے پر پولیس افسران کے خلاف توہین عدالت کی درخواست لاہور ہائی کورٹ کے رجسٹرار آفس نے سماعت کے لیے مقرر کر دی۔ جسٹس سلطان تنویر 13 نومبر کو کیسرا الہی کی توہین عدالت کی درخواست پر سماعت کریں گے۔ عدالت نے فریقین کے وکلاء کو دلائل کے لیے طلب کر رکھا ہے۔ ڈی آئی جی آپریشنز اور ڈی آئی جی انویسٹیگیشن سمیت دیگر کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر ہے۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ عدالتی حکم کے باوجود افسران نے پرویز الہی کو گھر بحفاظت نہیں پہنچایا، لہٰذا عدالت پولیس افسران کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کرے۔ عدالت نے چینی کی قیمتیں مقرر کرنے کا اختیار کین کمشنر کو دینے کے خلاف درخواستیں بھی سماعت کے لیے مقرر کر دی۔ جسٹس علی باقر نجوی کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ کیسز سنے گا۔ درخواستوں میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ پنجاب حکومت نے کین کمشنر کو چینی کی قیمتیں مقرر کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا۔ پنجاب حکومت کا نوٹیفیکیشن رولز کے برعکس ہے، لہٰذا عدالت چینی کی قیمتیں مقرر کرنے کا اختیار کین کمشنر کو دینے کا نوٹیفیکیشن کالعدم قرار دے۔ قبرستان کی زمین پر قبضہ کرنے کے مقدمہ میں خاور مانیکا کی درخواست ضمانت بعد از گرفتاری بھی سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی۔ یہاں پر آپ کو بتائیں، لاہور بار ایسوسی ایشن کے انتخابات کے لیے میدان 13 جنوری کو سجے گا۔ انتخابات میں 25 امیدوار حصہ لیں گے۔ الیکشن کا ضابطۂ اخلاق بھی جاری کر دیا۔ تفصیل نعمان نور کی رپورٹ میں۔ لاہور بار ایسوسی ایشن کے انتخابات کے لیے میدان 13 جنوری کو سجے گا۔ الیکشن میں 25 امیدوار حصہ لے رہے ہیں۔ صدر کے لیے منیر حسین بھٹی، خرم رفیق شاد، ادیب اسلم بھنڈر اور نور نعیم خان کے درمیان مقابلہ ہوگا۔ سیکرٹری کے لیے رانا نعیم طاہر، راؤ تحسین شریف، شرجیل کھوکھر، نصیر بھلا اور عظمی گیلانی قسمت آزمائیں گے۔ نائب صدر کی نشست پر علی طاہر نقوی، سجاد بٹ، ناصر اکبر بھٹی، سیف کھوکھر، عمران سرور، میاں شرجیل، مریم اور دیگر آمنے سامنے ہوں گے۔ ماڈل ٹاؤن کی نائب صدر کی نشست پر وقار اسلم، کنول آصف، بلال آصف، پیرزادہ معین، چودھری خورشید مد مقابل ہیں۔ ضابطہ اخلاق کے مطابق تمام عدالتوں، ہاتھا عدالتوں اور بار روم کے اندر اور باہر ووٹ مانگنے کی اجازت نہیں ہے۔ کوئی امیدوار اپنے پوسٹر، فلیکسز اور اشتہار ہاتھا عدالت میں چسپاں نہیں کرے گا۔ وکلاء صاحبان امیدواروں کی حمایت اجازت کے بعد صرف چائے پر کر سکتے ہیں۔ امیدوار یا اس کا سپورٹر اپنے مخالف امیدوار کے خلاف پریس کانفرنس یا اشتہار جاری نہیں کرے گا۔ ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کرنے والے امیدواروں کو نااہل تصور کیا جائے گا۔ لاہور بار کے انتخابات میں حصہ لینے والوں کے لیے الیکشن کمپین کی فیس بک اور واٹس ایپ پر اجازت ہوگی۔